Hello students, good morning. Okay, it is your geography period, chapter 4, climate. Topic is factors affecting the climate of a place. In this topic, we shall study about the different factors those influence climate of any place. To understand factors affecting the climate of a place, first I want to repeat about weather and climate. First, weather. Weather refers to the condition of atmosphere not only between day and night but also at shorter intervals of a few hours and minutes. With reference to atmospheric pressure, temperature, humidity, precipitations, cloudiness, and wind. In this way, under weather, we shall study about the sudden change in our atmosphere, like atmospheric pressure, temperature, humidity, rain, precipitation means any type of deposition of water from different form of water on the earth from the atmosphere, यानी किसी भी तरह का पृथ्वी पर वाटर के फॉर्म का जमाव, वाटर के किसी भी रूप, चाहे वह आइस हो, स्नो फॉलिंग हो, रेन फॉलिंग हो या ड्यू, कुछ भी हो, इस तरह से जो भी वाटर फॉर्म लैंड पर डिपॉजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. There are a number of changes, not day by day, but it also occurs after few hours or few minutes. This short period changing about the atmosphere known as weather. Next, climate. Climate is the average weather conditions of a place over a long period of time. Climate is the average weather conditions of a place over a long period of time, generally about 30 to 40 years or above. क्लाइमेट जो होता है यह वेदर कंडीशन का एवरेज होता है. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस. किसी भी प्लेस का जो वेदर कंडीशंस होता है, एवरेज वेदर कंडीशन, जो एक लंबे पीरियड यानी लंबे समय तक चलता रहता है, लगभग 30 से 40 वर्ष या इससे भी अधिक होता है, इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं. सेम वेदर कंडीशन जब 30 से 40 साल तक यानी इतने लंबे समय तक या इससे अधिक होता है तो उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं. क्लाइमेट रिफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड ए लार्ज एरिया. ये लॉन्ग पीरियड तक होता है
और लॉन्ग एरिया भी होता है, इसका लार्ज एरिया भी होता है। क्लाइमेट रिफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड ए लार्ज एरिया। On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer and rainy season। जो क्लाइमेट है मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यह लंबे समय तक एक काफ़ी दूर तक सेम होता है और इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मंथली डिवीज़न किया जाता है जिसको ईयर कहते हैं। ईयर कई सीजन्स में डिवाइड होता है जैसे विंटर, समर एंड रेनी सीजन। The world is divided into number of climatic regions। ये हमारा पूरा वर्ल्ड जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में बटा हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडियन क्लाइमेट को मानसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मेनली फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो मानसून टाइप क्लाइमेट होता है यह साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में मिलता है। मानसून इज a wind that changes direction। Monsoon is a wind that changes direction with the change of season। ये जो मानसून होता है इसका जब ब्लोइंग का डायरेक्शन चेंज होता है तो सीजन में परिवर्तन होता है। द मानसून विंड prevail mainly in the Indian Ocean। Monsoon wind prevails mainly in the Indian Ocean। It blows। Monsoon is a wind that changes direction with the changes of season। The monsoon winds prevail mainly in the Indian Ocean। It blows from the southwest from April to October and from the opposite direction। April to October and from the opposite direction। The northeast from October to April। स्टूडेंट्स, ये जो मानसून आता है हमारे यहाँ पर ये मानसून विंड इंडियन ओशंस से आती हैं, मे बी अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल। मानसून विंड्स जो आती हैं अरबियन सी से आती हैं, बे ऑफ बंगाल से आती हैं और ये ब्लो करती हैं साउथ वेस्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। अप्रैल से अक्टूबर तक ये साउथ वेस्ट में ब्लो होती हैं। इसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ये मानसून विंड अक्टूबर टू अप्रैल तक ब्लो होती हैं। डिस्पाइट ओवरऑल यूनिटी इन जनरल पैटर्न, देयर आर रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन।
There are variation in climatic condition within the country. If we take temperature and precipitation chart of many places, we will find that they vary from place to place and season to season. Climate में there are regional variations in climatic conditions within the country. वैसे तो जो वेदर्स कंडीशन होती हैं सेम होती हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट में, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय परिवर्तन अलग अलग होता है क्लाइमेट कंडीशन में। वह विभिन्नता मिलती है। जैसे इफ़ वी टेक टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चार्ट ऑफ मेनी प्लेसेस वी विल फाइंड दैट दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। अगर हम एक टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का चार्ट देखें तो कई स्थानों का चार्ट देखने पर यह पता लगता है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इन दोनों में काफ़ी वेरिएशन मिलता है एक सीजन से दूसरे सीजन में। फॉर एग्जाम्पल, इन समर द टेम्परेचर rises 50 degree in some part of Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Kashmir। जैसे हम एक ही सीजन का क्लाइमेट देखते हैं, जब वेदर कंडीशन देखते हैं तो वह भी डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे राजस्थान में समर सीजन में देखा जाए तो वहाँ का टेम्परेचर मीन्स राजस्थान डेजर्ट का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होता है। ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर, जो द्रास सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर में, रात में वहाँ का टेम्परेचर विंटर सीजन में -45 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा वेदर कंडीशन है यह प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। जैसे राजस्थान डेजर्ट जो है वहाँ पर समर सीजन में 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, जबकि कश्मीर में 20 डिग्री टेम्परेचर ही रहता है। विंटर सीजन में देखा जाए तो जो कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर का द्रास सेक्टर है वहाँ पर -45 डिग्री से भी नीचे हो जाता है टेम्परेचर, और तिरुवनंतपुरम केरला में है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री रहता है। इस तरह से एक ही कंट्री में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन हैं। तो एक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं इसके, उसको हम लोग आगे देखते हैं। द अफेक्टिंग factors of the climate of a place. First, latitude. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to the latitude. As a result, air temperature decreases from the equator to the poles.
latitude. Latitude affected the climate of a place. You know that near the equator area, the temperature is very high, and polar region very low temperature. Due to this region, altitude affected the climate of a place. If the place is near the equator, then there is very hot temperature in summer, and if the place is far from equator, then moderate climate, and near polar regions cold climate. In this way, latitude affected the climate of any place. Altitude means height from the sea level. Altitude means height of any place from the sea level. As the atmosphere is heated from below, the lowest layer in contact with the Earth's surface is the warmest. जो हमारा लोअर सरफेस होता है मीन्स अर्थ के पास जो टेम्परेचर होता है वह हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि अर्थ के पास का जो एटमॉस्फेयर होता है वह वार्म होता है। इसलिए अर्थ के पास का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट at the rate of 1 degree Celsius for every 105 meter of height above the sea level. सी लेवल से जब हम ऊपर चलते हैं हर 165 मीटर पर, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। द हायर लेयर कंटेन्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेंस देयर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी इज मच लेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल से, जो एयर में वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक कम होते हैं हवा में। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, जिसके कारण जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। द हायर लेयर कंटेन्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर चलते हैं हमारी जो एयर है इसकी ड्रॉपलेट्स वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कम होता है। इसमें वाटर वेपर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है, जिससे इसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। देयरफॉर हिल स्टेशंस लाइक कुलू एंड आर कोल्डर देन दिल्ली। तो इस तरह से हमारा एल्टीट्यूड, जैसे आप इस समय देख रहे हो लेह लद्दाख में लगभग -15 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो इस तरह से वो बहुत हाइट पर है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में पहुँच गया है। इस तरह से एल्टीट्यूड मीन्स सी से
किसी भी प्लेस का हाइट कितना है बहुत डिपेंड करता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, स्टूडेंट्स you know that air pressure, high pressure and low pressure, it also affect our climate. Low pressure means where there are more droplets in air, the air is high pressure, and where there hot air means dry air has less pressure. Hello. In this way, air pressure also affected our climate of any place. According air pressure, हमारा जो विंड सिस्टम होता है ये चलता है। विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी increase, its moderating influence decrease and the people experience extreme weather conditions. It is called continentality, which means very hot during summer and very cold during winter. Distance from the sea. The climate depends also on the distance from the sea. If a place is more far from the sea, there is experiences extreme weather condition. It means continental climate. It means continental climate means very hot in summer season and very cold during winter season. Where there the places near the sea has moderate climate means neither very hot in summer and not very cold in winter, means प्लीसेंट क्लाइमेट होता है वहाँ का। जबकि जो स्थान समुद्र से काफ़ी दूर होते हैं, सी से काफ़ी दूर होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं। मीन्स वेरी हॉट इन समर सीजन एंड वेरी कोल्ड इन विंटर सीजन। Ocean currents. Ocean currents also affected our climate of any place. Ocean currents transport large quantity of water over thousands of kilometers. Warm currents increase the temperature of coastal regions. Cold current reduce the temperature of कोस्टल रीजन्स। ओशन करंट्स जो होती हैं, जब वार्म करंट्स आती हैं जो कि हजारों किलोमीटर से दूर आती हैं, दूर से आती हैं, अगर ये वार्म करंट होती हैं तो कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर होता है वह बढ़ जाता है, और अगर कोल्ड करंट होती हैं तो कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मीन्स फिजिकल फीचर। यू नो दैट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 physical features like Himalayas,
northern plains, desert, plateau region, coastal plains, and islands. Relief feature means physical feature of any place. Also affected our climate. High mountain ranges and plateau act as barrier for the movement of wind in the lower layer of the atmosphere. They may also cause precipitation if they lie in the path of rain bearing wind and are high enough. The leeward side remains dry. जो रिलीफ फीचर होती हैं यह काफ़ी कुछ हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं, जैसे हाई माउंटेन्स और प्लेट्यू रीजन होते हैं। ये क्या करते हैं, हाई माउंटेन और हाई प्लेट्यूज जो होते हैं ये हमारे रेन बियरिंग विंड को मीन्स मानसून को रोक लेते हैं और ये वर्षा के कारण बनते हैं, यानी मानसूनी हवाओं को रोकने से वहाँ उस क्षेत्र में बारिश होती है। और जो माउंटेन रेंज या प्लेट्यू रेंज सामने पड़ता है मानसून विंड के, जहाँ पर बारिश होती है उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। जो फ्रंट साइड होता है जहाँ पर खूब बारिश होती है, लेकिन जो पिछला भाग होता है उसका, जहाँ पर हवाएं विंड जो होती हैं रेन बियरिंग विंड उसके ऊपर से निकल जाती है, जो उसका पोर्शन पीछे वाला होता है उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। इस तरह से हमारे क्लाइमेट को जो रिलीफ फीचर हैं इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर हिमालय माउंटेन न होता हमारे यहाँ, हमारे कंट्री के नॉर्थ में, तो जो हमारा प्लेन्स एरिया है यहाँ भी रेगिस्तान की तरह ही होता, बारिश नहीं होती, क्योंकि ये जो हमारा हिमालय माउंटेन है रेन बियरिंग विंड को रोक लेता है और पूरे भारत भर में अच्छी बारिश कराता है। ओके स्टूडेंट्स, योर क्लास इज ओवर।